Namaskar. Namaskar. How are you all today, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? आप सब कैसे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां? I trust all of you are well and good by the good grace of our dear Lord Jesus Christ. मैं विश्वास करता हूं कि हमारे भले प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग ठीक हैं। The Lord Jesus Christ is coming again very soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आ रहे हैं। And His kingdom is also going to come together with Him very soon. उनके साथ ही उनका राज्य भी बहुत ही जल्द आने वाला है। So get ready to meet Him. उनसे भेंट करने के लिए तैयार हो जाएं। My dearly beloved brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, An incident once happened in the year 1985 in the US. 1985 साल की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक घटना घटी। A man called Anthony Ray Hinton was sentenced to death. एक व्यक्ति जिनका नाम एंथोनी रे हिंटन था, उनको मृत्यु दंड दिया गया। There was a false charge put on him that he had killed 2 restaurant managers. उनके ऊपर यह झूठा आरोप मढ़ा गया कि उसने 2 रेस्तरां के प्रबंधकों की हत्या करी। But you know what is the truth? मगर आप जानते हैं कि सच्चाई क्या थी? During the time of the alleged murder, Anthony was somewhere else far away. उस कथित हत्या के घटना के समय एंथोनी कई मील दूर पर थे। But like what we hear in our own countries, false charges was put on him. मगर जैसे हम अपने देश में भी सुनते हैं कि उसी तरह उसके ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए। And false witnesses were also set up to falsely testify against Anthony. और झूठे गवाह भी तैयार किए गए एंथोनी के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए। So eventually Anthony was sentenced to death. अंत में जाकर एंथोनी को मृत्यु दंड मिला। So in the US they do not hang anybody, but they send them to the electric chair. अमेरिका में मृत्यु दंड फांसी से नहीं दिया जाता है, मगर अपराधी को विद्युतीय कुर्सी पर रखा जाता है। In the US, the death penalty is carried out in 2 ways. अमेरिका पर मृत्यु दंड 2 तरीके से दिया जाता है। Death either through the electric chair or through a lethal injection. विद्युतीय कुर्सी में या तो इंजेक्शन के द्वारा। So in Anthony's case, the judge ordered him to die through electric chair. एंथोनी के केस में न्यायाधीश ने उसे विद्युतीय कुर्सी पर रखकर मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। So till his sentence is carried out, he was put in prison. उन्हें तब तक जेल में रहना होता था जब तक मृत्यु दंड का दिन न आए। Days passed by. समय बीतता चला गया। Weeks passed by. सप्ताह बीतता चला गया। Months passed by. महीना भी निकल गया। Years passed by. यहाँ तक कि साल भी निकलने लगे। Anthony was in prison for 30 years. एंथोनी जेल में रहते रहते 30 साल निकल चुका था। His time for to be killed through the electric chair did not come for 30 years. विद्युतीय कुर्सी पर मृत्यु दंड पाने का दिन 30 साल तक नहीं आया। But during the 30 years, Anthony had a very hard life living in the prison. मगर 30 साल तक जेल में एंथोनी को बहुत ही मुश्किल भरा वक्त से गुजरना पड़ा। Of course, life in the prison is not like staying in a 5-star hotel. निश्चय ही जेल की जिंदगी 5 सितारा होटल के समान आरामदायक तो होगा नहीं। And the way the prison cells are structured, बंदियों के कारागार इस तरह से बनाए जाते हैं, whenever there is a prisoner who is sentenced to death on the electric chair, जब किसी बंदी को विद्युतीय कुर्सी पर रखकर मृत्यु दंड दिया जाने का निर्णय लिया जाता है, whenever the executioner presses the button for electric currents to pass to a prisoner to die, और जब जल्लाद उस बटन को दबा देता है जिसके द्वारा कुर्सी पर बैठा बंदी करंट लगने से मर जाता है, the electricity fluctuates all over the prison cells. कारागार के हर कमरे में विद्युत ऊपर नीचे हो उठता है। And the electric bulbs were all flicker and flicker. और बिजली के बल्ब की रोशनी ज्यादा कम होने लगती है। So each time Anthony sees that, he'll be thinking, oh, my time will also come like that.
जब भी एंथोनी अपने कक्ष में बैठकर ये सब दृश्य को देखता, वो सोचने लगता कि मेरा हालत भी ऐसा ही होगा। And other prisoners who are not on death row feel the fear of impending death. अन्य कैदी जिन्हें मृत्युदंड ना मिला हो, वे भी मृत्यु के भय से कांप जाते थे। 30 years later, when Anthony was first sentenced to death, the Supreme Court in the US reopened his case. मृत्युदंड की घोषणा हुई एंथोनी को मृत्युदंड की घोषणा हुई 30 साल बाद अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह केस फाइल को फिर से खोल दिया। So Anthony was still in prison for 30 years. एंथोनी अभी भी 30 साल तक जेल में ही था। So when the Supreme Court judges re-examined all the evidence, they found Anthony to be innocent. जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने खोजबीन करी तो ये पाया गया कि एंथोनी तो निर्दोष निकला। So after 30 years, Anthony Ray Hinton was acquitted and released. 30 साल बाद एंथोनी रे हिंटन निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर आ गया। And let me tell you something very amazing. एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहूँगा। Anthony was a believer in the Lord Jesus Christ. एंथोनी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। And during the 30 years in prison, he always was very peaceful. 30 साल तक कारागार के अंदर वे बेहद शांत थे। He had an indescribable joy and peace filling his heart and mind all the time. हर समय उनके अंदर एक अवर्णनीय शांति और आनंद मौजूद रहता था। How is it possible? ये कैसा संभव हो सकता है? When you are in such a situation, you are dying every day. ऐसी परिस्थिति में तो आपको हर दिन मरना होता है। How was it possible for Anthony to be so peaceful? एंथोनी के लिए ऐसी परिस्थिति में शांत रहना किस तरह संभव हुआ? The answer is found in the Holy Bible. इसका जवाब आपको धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में मिल जाएगा। There is a book in the Bible called First Peter. बाइबल में एक पुस्तक है पहला पत्रस। This is what chapter 1 verse 8 and 9 says. पहला पत्रस पहला अध्याय का 8 और 9वां वचन हमें ऐसा कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके इससे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। Look at what the scripture says. देखिए यह वचन क्या कहता है, That real peace and indescribable, inexpressible joy is given only by the Lord Jesus Christ. वो वास्तविक शांति और वो अवर्णनीय आनंद सिर्फ यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। The Lord Jesus Christ once said like this, In this world you shall have troubles. इस संसार में तुम्हें तकलीफ तो होगी है, But I give you my peace. मगर मैं तुम्हें अपना शांति दूंगा। Not the peace of the world. इस संसार के माफिक शांति नहीं, That is only temporary. वो तो अस्थायी है। That peace of the world is there in you only for good times. संसार का दिया हो वो शांति तो कुछ समय के लिए ही है, भलो और असल समय को लागे मात्र हो। But the peace I give you is permanent. मगर मैं जो शांति दूंगा वो सदाकाल के लिए है। That peace can only be given by the Lord Jesus. यही शांति सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं। That was the peace that kept Anthony all during the 30 years in prison. यही शांति एंथोनी को 30 साल तक कारागार के अंदर रहने पर मदद किया। And there was another thing that Anthony said to his accusers and the false judgment made against him before he was brought into the prison. एंथोनी ने एक और बात अपने आप को कारागार में जाने से पहले आरोप लगाने वालों के लिए ऐसा कहा, निम्ति पनि उनले यसो भनेका छन् तिनलाई झ्यालखानामा ल्याउन भन्दा अघि। He looked at the false accusers and he said, I forgive you for falsely testifying against me. उसने उस झूठ का सहारा लेने वालों को देखकर कहा कि मुझे दोषी ठहराने के लिए झूठ का सहारा लेने के लिए मैं तुम्हें माफी देता हूँ। And he also said, when I die, I will go to heaven, but where will you go? उन्होंने ये भी कहा था कि मरने के बाद मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मगर तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? तुम कहाँ जाओगे? He who believes in the living God, Lord Jesus Christ, when he dies, his soul will go to the heavenly realm.
जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जब वो मर जाता है उसका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। But those who die in their sins, they will perish in hell forever and ever. मगर जो अपने पापों में मर जाएंगे वे अनंत काल तक नरक में पड़े रहेंगे। So where will you go after your death? आप कहाँ जाएंगे मरने के बाद? Of course you may say, I don't know. Who knows? शायद आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता, कौन जानता है? But where will your soul go? मगर आपका आत्मा कहाँ जाएगी? It doesn't wander anywhere. It either goes to heaven or goes to hell. यह इधर उधर नहीं भटकेगा, यह या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा। The Lord Jesus Christ died for our sins, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरे, so that we are not condemned to perish in hell. ताकि हमें दोषी ठहरकर हम नरक में न जाना पड़े। This is the mystery. यही रहस्य है। The very God who passed the judgment that the soul that sins will die is the very God who came down to this world to die for us. वही ईश्वर जिन्होंने यह न्याय का निर्णय लिया था कि जो पाप करेगा वो अवश्य ही मरेगा, वही परमेश्वर इस धरती पर आए हमारे पापों की खातिर मरने के लिए। So now the great judge of all the world says, if you believe on the Lord Jesus Christ, you will not perish in hell. अब इस सारा ब्रह्मांड के न्यायकर्ता ऐसा कह रहे हैं, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हें विनाश के लिए नरक नहीं जाना पड़ेगा। This is just like Anthony's case. यह एंथोनी के मामला के समान है। One judge passed the law that he should be sentenced to death. एक न्यायाधीश ने न्याय घोषणा करी कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। But another judge overruled the entire case and set Anthony free. मगर दूसरे न्यायाधीश ने पहले के न्यायाधीश की सजा को नकारते हुए उसे स्वाधीन करने के निर्णय को दिया। And we are set free because of the death of the Lord Jesus Christ for us. हम इसलिए आज के दिन स्वाधीन हो गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए मरने के कारण। Do you want your sins to be forgiven? क्या आप चाहते हैं कि आपका पाप माफ हो? Do you want all your hereditary sins and bad curses to be broken and set free in your life? क्या आप चाहेंगे कि आपकी पीढ़ीगत शाप और पाप आपके जीवन में टूटने पाए और आप स्वतंत्र अनुभव करें? Do you want continuously peace in your life and in your mind? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन लगातार शांति और चैन से भरा रहे? Only the Lord Jesus Christ can do that for you. सिर्फ यीशु मसीह आपके लिए ऐसा कार्य कर सकते हैं। No one else can do that. और कोई भी कर नहीं सकता। Only the Lord Jesus. सिर्फ यीशु मसीह। Do you want to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior so that your sins can be forgiven and you have this peace? क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं ताकि उस शांति का अनुभव आप भी करने पाए? I'm going to pray for you right now. मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा। Please get up from your chairs and kneel down. अपने कुर्सी से निकलकर घुटने पे आए। If you want this peace and this forgiveness of sins in your life, अगर आप इस शांति को अपने जीवन में पाना चाहते हैं और अपने पाप का क्षमा का अनुभव करना चाहते हैं, take your right hand and you put on your heart अपना दायां हाथ अपने दिल पर रखें and pray this prayer with me. मेरे साथ आप भी ये प्रार्थना करें। Our gracious and loving Heavenly Father, हमारे अनुग्रही प्यारे पिता, I admit that I am a sinner. मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। In sin, my mother conceived me. मेरी माता ने मुझे पाप ही में गर्भ धारण किया। Lord Jesus, I believe you died for my sins. प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पाप के लिए मरे। I believe you took my place. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी जगह लिए। By your death, you have set me free from eternal condemnation. आपने मृत्यु के द्वारा मुझे अनंत न्याय में जाने से स्वतंत्र कर दिया। Thank you for dying for me, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे लिए मरने के लिए। Thank you for forgiving me of all my sins. धन्यवाद मेरे सभी पापों को क्षमा करने के लिए। I believe that you are the true living God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है। I accept you as my Lord and Savior. मैं आपको मेरे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। Come into my life and be my Lord and my God. मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन का स्वामी बनने जाइए।
Thank you, Lord Jesus, for coming into my life. धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए। Loving Father, I pray for all these sons and daughters of yours who have just become your new children. प्यारे पिता, मैं इन हर एक प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी आपके बच्चे बन गए हैं। Thank you for forgiving them of all their sins. धन्यवाद उनके हर पापों को क्षमा करने के लिए। Thank you for giving them eternal life right now. इसी वक्त उन्हें अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। And I pray that you will sanctify and wash them clean by your blood right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें शुद्ध करें और उन्हें आपके लहू के द्वारा धो दें इसी वक्त। And I command every hereditary sins and bondages in their lives be broken in the name of the Lord Jesus. मैं आदेश देता हूँ कि हर वो पीढ़ी से आने वाली हर पाप और बंधन को यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। From this day onwards, lead them in righteousness and holiness. आज के बाद आप उन्हें धार्मिकता और पवित्रता में अगुवाई करें। In the name of the Lord Jesus Christ, I bless them. यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें आशीष देता हूँ। Amen. आमीन। My dearly beloved sons and daughters, if you have prayed this prayer, go to a good church near your home. प्रिय बेटे बेटियां, अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की हो तो अपने घर के पास एक अच्छे कलीसिया में जाएं। And tell the pastor there what great things God has done for you through this program. और वहाँ के पासवान को ये बताएं कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने कैसा महान कार्य आपके जीवन में करी है। And may the good Lord continually bless you all throughout this week. हमारा भला परमेश्वर इस पूरे हफ्ते आपको निरंतर आशीषित करें। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। नमस्कार। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।